हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। आई एम गुरविंदर कौर हंस एंड स्टूडेंट ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ एवरीडे ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ 4 ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ 3 ਸੈਸ਼ਨਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ व्हाट इज ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਸ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਡੈਪਟਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀ ਹੇਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੀ ਸੈਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਜਨ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟੀ ਸੈਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ। ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਗਲਫ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਨॉन ਫੈਗੋਸਾइटोसिस ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਐਨਕੇ ਸੈਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿਲਰ ਸੈਲ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਗਲਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਸਾਈਟੋਟੌਕਸਿਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰਫੇਰੋਨ। ਇੰਟਰਫੇਰੋਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਟੂ ਫਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਅ ਵਾਇਰਲ ਅਟੈਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਐਕਵਾਇਰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿਲਰ ਸੈਲਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੀ ਸੈਲਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੀ ਸੈਲਸ। टी सेल्स। ठीक है, टी सेल्स ऑफन कॉल्ड नैचुरल किलर। ठीक है, क्यों करते, क्योंकि ये सैल्स ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿਲ ਕਰਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਸੈਲ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਕੈਂਸਰਸ ਸੈਲ, ਡੂ ਕਮੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵਟ ਇਜ਼ ਕੈਂਸਰਸ ਸੈਲ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਕੈਂਸਰਸ ਸੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰਸ ਸੈਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਡੂ ਕਮੈਂਟ। Recognize infected human cells and cancer cell. ठीक है, T cells will attack these infected cells, quickly kill them, and then continues to search for more cells to kill. ठीक है, जो T cell है वो की करती रहती है, घूमती रहती है पूरी बॉडी के अंदर। की करेगी, घूमती रहती हैगी है। ठीक है, स्टूडेंट साइलेंट प्लीज। ठीक है, ਤਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਟਡ ਸੈੱਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟਡ ਸੈੱਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੈਂਸਰਸ ਸੈੱਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਹੋਰ ਸੈल्स ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀ ਸੈੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈੱਲ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੀ ਸੈੱਲ, ਟੀ ਸੈੱਲ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਟੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, किल कर रही है, किलिंग का काम खुद ही कर रही है। बट जो बी सेल है वो की बना रही है, एन नंबर ऑफ की बना रही है, की बना रही है स्टूडेंट, एंटीबॉडीज बना रही है। की बना रही है, एंटीबॉडीज बना रही है। ठीक है, एंटीबॉडीज बना रही है। कौन बना रही है, बी सेल बना रही है। टी सेल कोई एंटीबॉडी नहीं बना रही, वो की कर रही है, डायरेक्ट किलिंग का काम कर रही है, खुद ही हथियार लेके खड़ी है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, आप देखो, वन सेकेंड, ओके। अच्छा, इत्थे एक चीज होर समझो स्टूडेंट तुसी, जो टी सैल होंदी है, कई बार की होंदा है कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि मैम टी सैल जिहड़ी हैगी है, एक होंदी है स्टूडेंट टी सैल, एक होंदी है अपनी टी हैल्पर सैल। मैं डिवाइड कर सकती हूँ टी सैल्स नूं, टी एक नैचुरल किलर सैल ते एक अपनी टी हैल्पर सैल। जो टी हैल्पर सैल होंदी है ना स्टूडेंट, हैल्पर सैल होंदी है, ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਟੀ ਸੈੱਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੱਟ ਹੈ। ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਦਿਸ, ਸੀ ਹੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕ ਸ਼ੀਟ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ।
देखो जो टी सेल है इसको मैं फर्दर दो पार्ट्स डिवाइड कर सकती है। फर्स्ट वन इज योर टी सेल दैट वी कॉल नेचुरल किलर सेल, एक है अपनी टी हेल्पर सेल की है टी हेल्पर सेल। हम जो टी हेल्पर सेल है स्टूडेंट ये की करेगी, ये हेल्प करती है किस दी बी सेल्स दी, किस दी हेल्प करती है बी सेल्स दी हेल्प करती है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, किहदे लिए टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, ओके क्लियर है स्टूडेंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ टी हेल्पर सेल बारे एक बार स्टूडेंट ने मैंने कमेंट किया सीगा सो मैंने रिकॉल हो गया। ठीक है, सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ठीक है जी, ओके ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੀ ਸੈਲ ਹੋ ਗਈ, ਟੀ ਸੈਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੈੱਡ ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, पूरा एरिया की हो जाता स्टूडेंट रेड रेड हो जाता है। वाई दिस इज हैपन सी हियर स्टूडेंट इत्थे देखो जिवें हुण इत्थे किसी परसन दे चोट लगी है, ठीक है एक इंजर्ड परसन तुसीं देखो कि इसका ए वाला जिहड़ा एरिया है वो की हो चुका है इत्थे रेडिशनेस आ चुकी है। वाई सी हियर स्टूडेंट जदों भी अपने किते भी चोट लगती है स्टूडेंट तां ब्रेन ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸੈਲਸ ਰਪਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸੈਲਸ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਰਪਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਨਾउ ਇਟ ਇਜ਼ डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट उपरों स्किन उतर चुकी है तो हुण की है जिहड़ियां अंदर वालियां सैल्स ने वो डायरेक्ट कांटेक्ट दे ने कांटेक्ट च ने। ठीक है, तो उत्थे की हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो सकती है। इस करके जो अपना ब्लड है ना जो अपनी WBCs ने वो इत्थे की करदियां ने रश करदियां ने बहुत तेजी नाल जिहड़ा है वो इस एरिया च पहुंचदियां ने वाया ब्लड। तो इससे जो ब्लड की सर्कुलेशन है स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सो दैट WBC जी है वो पूरा जो उन्होंने हड़ है वो इतने आ जाता है। ठीक है, पूरा इतने हड़ आ जाता है WBC का सो दैट वो की कर सकन इन्फेक्शन को रोक सकन क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आ चुकी है एनवायरनमेंट के इस करके। तो देखो इंजर्ड बॉडी सैल्स जो भी सैल्स जी है इंजर्ड हुई हैं मतलब जिन्होंने नुकसान होया चोट पहुंची है फॉर एग्जाम्पल इत्थे तुहाडे चोट लगी हुण ये जो अपनी स्किन सैल्स ने इत्थे की हो गया इंजर्ड हो गया इनू इंजर्ड हो चुकी ने है ना। ठीक है, हुण ये जो इंजर्ड सैल्स ने ये की रिलीज करदियां ने स्टूडेंट कैमिकल्स रिलीज करदियां ने कॉल्ड हिस्टामिन। किहड़ा कैमिकल रिलीज करदियां ने हिस्टामिन। प्लीज रिमेंबर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कोई भी इंजर्ड जी सैल हैगी वो किहड़ा कैमिकल रिलीज करती है द नेम इज हिस्टामिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच बिगन्स इन्फ्लामेशनरी रिस्पॉन्स। यही हिस्टामिन जिहड़ा हुंदा है रिस्पॉन्सिबल हुंदा स्टूडेंट फॉर द इन्फ्लामेशन, यही रिस्पॉन्सिबल हुंदा स्वैलिंग लई जो अपनी सूजन आ जाती जिथे भी अपनी चोट लगती हैगी है उहदे लई रिस्पॉन्सिबल कौन हुंदा है हिस्टामिन। पेन रिसैप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि पेन होना बहुत जरूरी है अदरवाइज थोड़ा पता ही नहीं चलेगा कि कितने थोड़ी चोट लगी। मान लो थोड़ी फीट ते चोट लगी हुण थोड़े पेन नहीं होया मान लो है ना तो की होएगा उतों ब्लड फ्लो करता रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा। सो दैट्स वाई जो पेन रिसैप्टर्स ने जिन्हां दी वजह नाल सानू पेन फील हुंदा है। ठीक है, पेन फील हुंदा स्टूडेंट थोनों दर्द फील हुंदा है। ठीक है, वो रिसैप्टर्स की हो जाते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। समझ आई। WBC फ्लॉक टू इन्फेक्टेड एरिया लाइक शार्क्स टू द ब्लड। शार्क पता है ना सी दे अंदर होंदी ओशियंस के अंदर होंदी है। अगर ब्लड का किते एक स्पॉट भी गिर जाए ना ठीक है तो उन्होंने स्मैलिंग जी पावर होंगी वो इन्नी ज़्यादा तेज होंगी है कि जिथे भी ब्लड थोड़ा बहुत भी गिरिया होंगे क्या शार्क जी हैगी उसकी तरफ फुल स्पीड नाल अगे बढ़ती है। ठीक है, वो तरफ बढ़ती है उस ब्लड की तरफ क्योंकि उन्होंने पता होंगे इतने कोई शिकार है। ठीक है, तो शार्क की तरह जोड़ा है WBC जी हैगी है जिथे भी अपने चोट लगी होंगी उत्थे शार्क की तरह उत्थे वो पहुंच जाती है।
तो WBC फ्लॉक टू इन्फेक्टेड एरिया लाइक अ शार्क टू ब्लड। समझ आ गई थोनों ये गल? ये स्लाइड समझ आई? यस और नो? ठीक है जी, ओके, क्लियर है जी? यस और नो? बताओ बताओ, यस और नो? क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है जी, ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, हुण देखो, द अदर हाफ ऑफ द इम्यूनिटी, जो अपनी बाकी बची हुई अद्धी इम्यूनिटी हैगी है, इज कॉल्ड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि उहदे च की हैगी अपनी एंटीबॉडीज की हुंदियां ने, इन्वॉल्व हुंदियां ने, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज द एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, मीनिंग दैट इज कंट्रोल्ड बाय एंटीबॉडीज। ठीक है, हुण तक आई थिंक सो कि तुहानूं समझ आ गया होएगा स्टूडेंट इत्थे ना। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इन द इम्यून सिस्टम। जो एंटीबॉडी एंटीजन वाला जो कॉन्सैप्ट है बच्चे, ये किहड़ी इम्यूनिटी चाहेगा अपने? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस चाहेगा। नो डाउट अबाउट दैट कि इत्थे वो स्पेसिफिक सैल्स नूं टारगेट कर रहे हैं, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस च तां ये इन्वॉल्व होएगी। ठीक है जी, क्लियर है तुहानूं इत्थे? यस और नो? दसो जी, क्लियर है कि नहीं गा? या एवं ही चला गया माइंड दी, बस स्किप ही हो गया सारा कुछ? समझ आ रहा है ना? डू कमेंट स्टूडेंट, प्लीज डू कमेंट। नैक्सट हुण आपां अपना मेजर एक इत्थे एक टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज अवर वैक्सीन। आई थिंक सो कि कोई भी स्टूडेंट इत्थे इदां दा नहीं होएगा लैक्चर के अंदर जिन्हें कदे ना कदे कोई वैक्सीन ना लगवाई होवे, है ना? वैक्सीनेशन, टीकाकरण जिन्हों आपां बोलदे, वट इज वैक्सीनेशन? इसनों समझण लई स्टूडेंट आपां एक खाली ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे, उत्थे तुहानूं ये समझ आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके नाल कि वैक्सीन की चीज़ होंदी। समझो स्टूडेंट्स इत्थे, वट इज वैक्सीन? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी हियर स्टूडेंट, जदों भी आपां नूं कोई इन्फेक्शन हुंदा है, वैन वी गॉट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन च हुंदा की है? कोई लिविंग पैथोजन, कोई लिविंग पैथोजन या फिर कोई वायरस, ठीक है, जो अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते तो उत्थे की कॉज करते? इन्फेक्शन कॉज करते है। तो साडी बॉडी का इम्यून सिस्टम जिहड़ा है, आवर बॉडीज इम्यून सिस्टम की करते स्टूडेंट इत्थे एक्टिवेट हो जाते, एंड आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ दैट डिजीज, दैट पैथोजन, आवर बॉडी फॉर्म्ड ए मेमोरी सेल्स। ठीक है जी, बट सम टाइप ऑफ डिजीज, ठीक है, या बहुत ही जड़ियां फेटल डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, पोलियो, पोलियो वायरस जो है या स्मॉल पॉक्स जो है स्टूडेंट, ये एवें दियां डिजीज ने स्टूडेंट जो बहुत ही फेटल ने, मतलब कि अगर किसी को स्मॉल पॉक्स हो जाए या पोलियो वायरस अगर चला जाए अंदर, तो स्टूडेंट थोनों वो हार्म करेगा ही करेगा, डेफिनेटली वो तुहाडे लई फेटल होएगा ही होएगा। तुहाडी बॉडी का कोई ऑर्गन जिहड़ा हैगा वो की हो जाएगा, परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, या तुहाडी इवन डेथ तक हो सकती। तो स्टूडेंट इन दैट सिनेरियो we required vaccination. वैक्सीनेशन जिहड़ी हैगी उसकी डेवलपमेंट कदों हुई, किवें हुई, वो तो आपां थ्योरी वाले पार्ट च देखांगे स्लाइड के अंदर। फिलहाल ये समझो वैक्सीनेशन हुंदी की तां सी हुण पोलियो के वायरस का ही आपां एग्जाम्पल लैने इत्थे स्टूडेंट, इहनूं किद्दां डेवलप करदे आं आपां देखो। दैन सी हियर स्टूडेंट, अगर किसी को वैक्सीन देनी हैगी है तो स्टूडेंट मैथड वही है, बट इत्थे तुसीं एक फर्क देखो, इत्थे की कीता जांदा है, इनएक्टिवेटेड और डेड सैल्स जिहड़ियां हैगियां किस दियां? पोलियो वायरस दियां, स्मॉल पैक्स, जिस दी भी तुसीं वैक्सीन देना चाहुंदे हो उसकी इनएक्टिवेट फॉर्म या फिर डेड जिहड़ी सैल्स है उसनूं इंट्रोड्यूस करवा दिता जाता है वाया इंजैक्शन और वाया ओरल, ठीक है,
ਔਰਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਜੈਕਟ ਇਨਟੂ ਦਾ ਬੋਡੀ। ठीक है जी। तो स्टूडेंट हुण इत्थे की हैगा, हुण जिहड़ा हैगा हुण जदों बॉडी दे अंदर एंटर होएगा तो बॉडी नूं नहीं पता स्टूडेंट इत्थे कि भाई वो लिविंग है या नॉन लिविंग। बॉडी का काम की है, जिवें ही उन्हें इसने देखा कि कोई फॉरन पार्टिकल बॉडी दे अंदर एंटर कीते, बॉडी दे की लिए, बॉडी दे लिए वो की एक फॉरन पार्टिकल, बॉडी उसनूं एज ए रिकोगनाइज नहीं करती कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, नहीं अपनी तरह नहीं है कि कोई परसन आया तो सब तो पहला उसका ये देखो कि हाँ जी वो किस जेंडर का है, उसका फाइनैशियल कंडीशन की है ना, 100 तरीके की आपां वो करना शुरू कर देंगे टेंट्रम बाजी है ना। बट इत्थे जिहड़ा अपनी बॉडी जिहड़ी बिल्कुल न्यूट्रल हैगी, उहदे लई पैथोजन सिर्फ पैथोजन, हुण इनएक्टिवेट है, लाइव है, बहुत डेडली है, उहदे लई कोई मैटर नहीं करता, उहदे लई मैटर करता कि उसनूं एलिमीनेट किदां करें। तो स्टूडेंट इत्थे की हैगा, बॉडी जिहड़ी हैगी उस फॉरन पार्टिकल दे अगेंस्ट की बनाना शुरू कर देगी, इत्थे फटाफट जिहड़ा हैगा वो इम्यून सिस्टम अपना एक्टिवेट करके उसके खिलाफ जिहड़ा लड़ना शुरू कर देगी, तो एट द एंड उसनूं एलिमीनेट करके की बना लेगी, इत्थे मैमरी सैल्स बना लेगी। ठीक है स्टूडेंट, हुण तुसीं मेरे तो क्वेश्चन पुट करोगे कि मैम की बेनीफिट है मैमरी सैल्स बनाने का। देखो स्टूडेंट, अगर तुहानूं मैमरी सैल्स का कॉन्सैप्ट अच्छे तरीके नाल क्लीयर हो गया होएगा तो समझो स्टूडेंट इत्थे तुहानूं कि जो अपनी मैमोरी सैल्स ने स्टूडेंट वो की कर रही ने कि जो नैक्सट टाइम जो इन्फेक्शन होएगा तो उस टाइम तो बहुत इंटेंसली तरीके नाल की करनी है, हाई इंटेंसिटी नाल की करनी है, उसनूं एलिमीनेट करनी है ना। देखिया सी ना आपां एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाली स्लाइड च। सो बिल्कुल उस तरीके नाल स्टूडेंट इत्थे की है कि जो अपनी इम्यून सिस्टम है उसने पहला तो ही मैमरी सैल्स बना के रख लिया ने पोलियो वायरस के अगेंस्ट। सो सैकेंड टाइम जो तुहानूं मान लो अगर पोलियो वायरस हुंदा है लाइव जिहड़ा वायरस है अगर तुहाडे उपर अटैक करदा तो अपनी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मैमरी सैल्स ने, सो विदाउट वेस्टेज एनी टाइम वो की करेगी फटाफट उसनूं एलिमीनेट कर देगी। बट अगर तुसी वैक्सीन नहीं लगवा रखी तो पोलियो वायरस तुहाडे अंदर एंटर कर गया, ठीक है, तो बॉडी जिन्ना टाइम च समझेगी, ठीक है, अपना इम्यून सिस्टम अपना एक्टिवेट होएगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी, इन्ने टाइम के अंदर अंदर इन्ने टाइम पीरियड के अंदर अंदर स्टूडेंट जिहड़ा अपना पोलियो वायरस है वो परमानेंटली डैमेज कर देगा बॉडी नूं। बॉडी कोल इन्ना टाइम ही नहीं होएगा कि उसनूं एलिमीनेट कर सके। समझ आ गई ना, ये बिल्कुल इदा है कि जिवें एकदम जिहड़ा हैगा अचानक जिहड़ा हैगा इंडिया के उपर मान लो अगर यूएसए अटैक कर दे या चाइना कर दे तो इंडिया जिहड़ा हैगा उसनूं प्रिपरेशन करन जिहड़ा हैगा वो टाइम लगेगा, है ना। तो इन्ने चिर च तां बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा चाइना या अमेरिका वर्गी बिग कंट्री, ठीक है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल कंट्रीज ने स्टूडेंट, ठीक है। बट अगर वही पाकिस्तान अगर अपने ते अटैक कर दे देन की हैगा कि ऑलरेडी सानू पाकिस्तान नाल अपनी वॉर कई बार हो चुकी है, सानू पहला तो ही उहदे बारे पता हैगा, ठीक है। तो बहुत ही इंटेंसली आपां की करांगे, रिस्पॉन्स देवांगे, ठीक है, काउंटर अटैक करांगे तो हो सकता आपां उसनूं एलिमीनेट भी कर दी। बट इन केस ऑफ यूएसए या चाइना जिहदे नाल अपनी कदे वॉर नहीं लगी, आपां ईवन यूएसए नाल दा बॉर्डर भी शेयर नहीं करते, सानू उसके वॉर टैक्टिक्स बारे भी नहीं पता। जदों नूं स्टूडेंट इंडिया अगर मान लो उस वॉर नूं जित भी जाए लास्ट के अंदर, बट वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर जाएगा इंडिया नूं परमानेंट। तो बिल्कुल उदा ही है स्टूडेंट, जदों तक अपनी जिहड़ी बॉडी है पोलियो वायरस नूं जदों तक वो एलिमीनेट करेगी, उस नाल फाइट करेगी, एनी टाइम जिहड़ा अपना पोलियो वायरस वो किते ना किते किसी ऑर्गन नूं परमानेंटली या अपनी बॉडी नूं पूरा परमानेंटली की कर देगी, वो बॉडी पैरालाइज्ड कर देगी या कोई ऑर्गन जिहड़ा हैगा उसनूं परमानेंटली डैमेज कर देगा। समझ आ गई, समझ आ गई तुहानूं कि वैक्सीन कितना रेडी की जाती है, उसके की बेनीफिट्स ने, किवें अपनी बॉडी के अंदर काम करती है। अच्छा, इत्थे जिहड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुहाडी तरफ तो आएगा कि मैम वाई वी चूज इनएक्टिवेट और डेड सेल्स। सी हियर स्टूडेंट, अगर आप लाइव सेल एज ए वैक्सीन दे देती तो वो तो अपनी बॉडी के अंदर जाके ग्रो कर जाएगी ना, फिर तो वैक्सीन की जगह तो आप खुद ही अपना नुकसान कर लिया। सो इत्थे जो डेड सेल्स ने या इनएक्टिवेट फॉर्म जिहड़ा हैगा उसनों आप यूज़ करते हैं सो दैट वो बॉडी के अंदर जाके ग्रो ना करन ते अपनी बॉडी नूं नुकसान भी ना करन ते आपां नूं जिहड़ा अपनी बॉडी दी जिहड़ा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होकर इत्थे मैमरी सैल्स भी की कर ले, जनरेट कर ले। समझ आ गई, यस और नो? क्लीयर होए तुहानूं इत्थे कॉन्सैप्ट क्लीयर होया वैक्सीन दा? ठीक है, तो वैक्सीन का अगर कॉन्सैप्ट क्लीयर हो चुके हैं स्टूडेंट, देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर स्लाइड। सी हियर वैक्सीन, समझो स्टूडेंट इत्थे इसनूं क्या है, देखो जी, देखो जी एंटीजन। एंटीजन की हुंदा है?
जो अपना सैल का सरफेस होंगे उसके बाहर जो रिसैप्टर्स ने वही चीज़ है ना, अगर उसनों भी अगर आप अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करांगे तो भी अपनी बॉडी के लिए वो की है एक फॉरन पार्टिकल है बच्चे, है ना। are deliberately introduced into our immune system to produce the immunity because the bacteria has been killed or weakened, क्योंकि ऑलरेडी ਜਿਹੜਾ बैक्टीरिया या तो उसਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ उसਨੂੰ ਇਨਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿਰਫ ਮਿਨੀਮਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ have eradicated or severely limited several disease from the face of the earth such as polio, smallpox, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਇਸ अर्थ के उपरों हमेशा लिए खत्म हो चुके हैं। किवें खत्म किते है? वाया वैक्सीनेशन, वाया वैक्सीनेशन। समझ आ गई जी? यस और नो? क्लियर होया? कॉन्सैप्ट क्लियर होई? ठीक है जी, ओके ठीक है जी। तो नैक्सट जिहड़ा हैगा स्टूडेंट आपां जिहड़ा हैगा इसनूं कल आपां ओवर कर देंगे अपनी किसनूं वैक्सीनेशन दी, ते नैक्सट आपां अपने क्वेश्चनस भी करांगे अपने MCQs। ठीक है जी, ओके कल अपना इम्यून सिस्टम इत्थे ओवर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है जी, ओके तो स्टूडेंट अज आपां इन्ना ही करांगे अज के सैशन के अंदर, बाकी देखेंगे आपां कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।